Okay, so starting off this video, I'm gonna do point number 9 first because I want to explain the oogenesis and spermatogenesis. After which we'll be going to point 8 and then to 8 and then onwards 10 to 14 we'll be doing in a sequence, okay? Because that's related to the derivatives of the three layers, three germ layers. Okay, first of all, considering this point, oocyte with a flat epithelium is primordial follicle. Okay, I'm just going to read this point first and then we'll go to the explanation of the processes. Okay, so oocyte with a flat epithelium is primordial follicle. The primary oocytes complete their first meiotic division before ovulation. Okay, just keep these points in mind for a while. After ovulation, primordial follicles rupture, bleed, and become corpus hemorrhagicus. Okay, so the clue over here is कि when the term bleed comes ना, तो we are going to say hemorrhagicus. अदरवाइज वी नो कि जब ओव्यूलेशन हो जाती है तो उसके बाद कॉर्पस ल्यूटियम बनता है, ठीक है? बट इन दिस केस वी आर सेइंग कि इट इज कॉर्पस हेमरेजिकस बिकॉज देयर हैज बीन अ ब्लीड, ठीक है? इट यूजुअली अकर्स इज मिनिमल अमाउंट ऑफ ब्लीड अकर्स विद ओव्यूलेशन, but over here the clue is the bleeding. Okay, now as far as refuel is concerned, okay, cell released by the ovary at the time of ovulation is secondary oocyte. Do not be confused with these points. I'm just going to clear this all up in a while. Okay, it also comes as the oocyte released during ovulation is called secondary oocyte. A primary oocyte surrounded by zona pellucida and corona radiata with fluid-filled spaces is called secondary oocyte. Primary oocyte surrounded by granulosa cells and having fluid-filled spaces is called secondary follicle. Regarding oogenesis, all primary oocytes complete their first meiotic division before ovulation. Primary oocytes are formed in the fifth month in fetal life and start meiosis 1 but maintain dormant till puberty, in which subphase of prophase, that is the diplotene stage. Okay, ovary has a pool of follicles. Number of follicles developing in each menstrual cycle is 15 to 20 follicles that are stimulated and one is selected. Secondary oocyte is formed under the influence of FSH. All at the start of the menstrual cycle, some 12 to 20 primary follicles begin to develop under the influence of FSH to form the secondary follicles. Okay, and then on day 14, a luteinizing hormone surge is triggered that causes the secondary follicle to develop into a tertiary follicle. Haploid number of chromosomes with haploid DNA are seen in spermatids. सही है. And then the primary oocyte after first maturation division produces one secondary oocyte in polar body. Okay, having said all this, I'm just gonna come to these clues first. Okay, oogenesis में मेन पॉइंट जो याद करने की है ना वो ये है कि oogenesis जो है 400,000 प्राइमरी oocytes जो हैं एट बर्थ इन अ फीमेल दे आर देयर, ठीक है? फिर बर्थ के बाद कोई माइटोसिस नहीं होता, वेरी अनलाइक द स्पर्मेटोजेनेसिस. एंड ऑल दीज प्राइमरी oocytes आर अरेस्टेड इन प्रोफेज 1 टिल प्यूबर्टी, ठीक है? डिप्लोटीन स्टेज में. सही है? दिस इज द की टू रिमेंबर. ओके, फर्स्ट म्योटिक डिवीजन कब कंप्लीट होती है? जस्ट बिफोर ओव्यूलेशन, ठीक है? ओव्यूलेट तो फिर ओव्यूलेट कौन सा होगा? प्राइमरी होगा कि सेकेंडरी? सी है, एक डिवीजन कंप्लीट कर ली है तो अब सेकेंडरी oocyte ओव्यूलेट होगा. फिर सेकेंड म्योटिक डिवीजन स्टार्ट हो जाती है लेकिन इट गेट्स अरेस्टेड इन मेटाफेज 2 अंटिल फर्टिलाइजेशन. सही है? और सेकेंडरी को टर्शरी फॉलिकल में भी कन्वर्ट होता है और उसका हमारे पास क्या ट्रिगर है? LH, बिकॉज LH इज द वन दैट कॉजेज इन्फ्लुएंस एंड कन्वर्ट्स ओव्यूलेशन भी कॉज करता है, तो ये इस टाइम पर रेज्ड होता है, ठीक है? और फिर टर्शरी फॉलिकल्स या अननोन जो अपने वो है उसके थ्रू अंडर जो है ये ग्राफियन फॉलिकल में कन्वर्ट हो जाता है. मेकिंग ऑल दीज पॉइंट्स मोर क्लियर, आई हैव अ पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन ओवर हेयर. आई विल मेक श्योर इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू. ओके, सी, ये जो है ये बर्थ से पहले है, ये इस एरो से पीछे जो है ना ये बर्थ से पहले है, ठीक है? इसमें यहाँ पे हमारे पास आ गए ये सारे जो सेल्स हैं, ठीक है? वो ये प्राइमरी oocytes में डेवलप होकर, ठीक है, ये सारे यहाँ पे आ जाते हैं 400,000 एट बर्थ, ठीक है? एंड नो फर्दर डेवलपमेंट अंटिल सेक्सुअल मेच्योरिटी, दैट इज द प्यूबर्टी, ठीक है? सही है? अच्छा, फिर इसके बाद जो है ये प्राइमोडियल फॉलिकल है, ठीक है? सिर्फ अभी पिक्चर दिमाग में रख लें. आई एम गोना गिव यू गाइस द डेफिनेशंस एज वेल, ठीक है? ये प्राइमोडियल फॉलिकल है कंटेनिंग द प्राइमरी oocyte, ठीक है? फिर ये अर्ली प्राइमरी फॉलिकल है, दिस इज प्राइमरी फॉलिकल अगेन, दिस इज सेकेंडरी फॉलिकल, ठीक है?
इसमें ये देखें छोटे छोटे ये फॉर्म हो रही है कैविटीज विच आर गोना कोएलेस एंड फॉर्म दिस कैविटी। देन ग्राफियन फॉलिकल कंटेनिंग सेकेंडरी oocyte, देन कम्स द ओव्यूलेशन और फिर हमारे पास पीछे कॉर्पस ल्यूटियम रह जाता है, ठीक है। एंड यहाँ पर देखो FSH and LH secretion at sexual maturity begins। तो FSH will cause ये और ये granulosa cells इसके इर्द गिर्द हैं which will continue forming estrogen, ठीक है। we'll come to that later, ठीक है। फिर first meiotic division is completed, ठीक है, और secondary follicle पे हम जो है वो चले जाते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद जो है सेकेंड मियोटिक डिवीजन स्टार्ट्स इन ग्राफियन फॉलिकल कंटेनिंग सेकेंडरी। सेकेंड मियोटिक डिवीजन स्टार्ट होगी एंड अनटिल एंड अनलेस दिस इज फर्टिलाइज्ड ये मेटाफेज में रहेगा अरेस्टेड, ठीक है। और यहाँ पर ये जो है प्रोफेज 1 में डिप्लोटीन स्टेज में अरेस्ट होगा, ठीक है, सही है, ओके। नाउ फॉर फर्दर क्लैरिफिकेशन ये फर्स्ट स्टेज पे है, ठीक है। दिस इज 46 सिंगल क्रोमोसोम्स, सही है। फिर ये सिस्टर क्रोमेटिड्स में डेवलप हो जाते हैं, ठीक है, अनलॉक हो जाते हैं सेल्स। ये 23 सिस्टर क्रोमेटिड्स, यहाँ पे सेकेंडरी oocyte and then a polar body, then finally 1 ovum and 3 polar bodies, okay। to make it further clear, see over here ये oogonia है, ठीक है, इसमें 2N and 2C मतलब एक क्रोमोसोम के में 2 क्रोमेटिड्स हैं और हर जीन की 2 कॉपीज हैं हमारे पास, ठीक है। 2N and 4C मतलब ये जो हमारे पास डबल क्रोमोसोम थे अब ये 4 हो गया, 2N 4C, ठीक है। अब 1N 2C मतलब कि एक क्रोमोसोम के 2 क्रोमेटिड्स एक सेल में है, एक इसमें है और 2 इसमें है, तो 1N 2C हैप्लॉइड है ये सेल, ठीक है। देन 1N 1C मतलब विद 1 क्रोमेटिड और उसकी 1 सिस्टर क्रोमेटिड की कॉपी, फिर इसके बाद फिर से डबलिंग वगैरह एंड ऑल होगी, ठीक है, सही है। सो दिस इज द सीक्वेंस, ओके। नाउ for further दगा just look at this is spermatogenesis। अच्छा यहाँ पर एक पॉइंट है जो पॉइंट नंबर 8 में है, but I just want to read it इसको because it's related to spermatogenesis, it's over here। The undifferentiated germ cells found in the basal compartment of seminiferous tubules are called type A spermatogonia. As all of us know, the structure of seminiferous tubules, if you guys want to see an image, I am going to show you here. ये जो है साइड पर immature हैं, these are type A, फिर type B और फिर eventually spermatids, ठीक है। This is seminiferous tubules structure, ठीक है, okay। Now sorry, okay, spermatogenesis, 4 haploid sperms are formed from 1 spermatogonium। सबसे पहले हमारे पास क्या होगा, माइटोसिस होगा, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास मियोसिस 1 है एंड देन मियोसिस 2 है। फॉर मेकिंग इट क्लियर और फॉर द रिविजन पर्पज आई जस्ट वांट टू टेल यू गाइज कि मियोसिस 1 और माइटोसिस एंड मियोसिस 2 आर सेम। इसमें जो है क्रोमोसोम नंबर हाफ नहीं होता, एग्जैक्ट सेल रेप्लिकेट होता है दोनों में। मियोसिस 1 में नंबर ऑफ द क्रोमोसोम्स बिकम हाफ, ठीक है, हैप्लॉइड हमारे पास सेल आगे आएंगे, ठीक है, ओके। सी दिस स्पर्मेटोगोनिया ए टाइप है प्राइमरी, देन इट गोज टू स्पर्मेटोगोनिया बी, ये बेसल कंपोनेंट है बिल्कुल सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के साथ। फिर स्पर्मेटोगोनिया बी में चला गया, ठीक है, हमारे पास तो ये अभी ये 2 सेल्स में डिवाइड हो गया, ठीक है, माइटोसिस हो गया, ठीक है। उसके बाद मियोसिस 1 प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट 2N है, ठीक है। तो अब क्या क्रोमोसोम नंबर हाफ हो गया, 1N एंड 1N। देन मियोसिस 2 इज जस्ट लाइक माइटोसिस, तो 1N के 4 बनाएगा एंड वी विल गेट 4 spermatids एट द एंड, सही है। आई एम गोना जूम इनटू इट सो दैट यू गाइस कैन हैव अ क्लियर। और ये हमारे पास यहाँ पे एक एक्स्ट्रा पॉइंट में लिखा हुआ है कि एक्रोसोम इज देयर इन द हेड ऑफ द स्पर्म व्हिच हेल्प्स अस इन फर्टिलाइजेशन, जो कि उसको क्रॉस करता है कोरोना रेडिएटर और जोना पेलेसिडा को, ठीक है। 2N से 2N 2N 1N एंड 4 1N हमारे पास आ जाते हैं, ठीक है। स्पर्मेटोगोनियम प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट एंड देन स्पर्मेटिड्स आर फुल डिफरेंशिएशन। अच्छा इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्पर्मेटोजेनेसिस एंड स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस ये पूरा प्रोसेस है, ठीक है। स्पर्मियोजेनेसिस इज द प्रोसेस जहाँ पे सेल्स मैच्योर होंगे एंड दे विल फॉर्म फ्रॉम दीज फाइनल, ये यहाँ पे ऐसा सेल होता है ना, इससे टू कन्वर्ट इनटू दिस टेल स्ट्रक्चर, दिस इज द स्पर्मियोजेनेसिस,
spermatogenesis. Okay, and clear enough. Now I just want to go quickly through the menstrual cycle, if I can get my hands over that. Wait a second, sorry. Okay, where is that? Okay, just for quick revision purpose. Okay, so this is the follicular phase and this is the luteal phase. Okay, ऑलराइट. फॉलिकुलर फेज की लेंथ हमारे पास वेरिएबल होती है, ल्यूटियल फेज की कांस्टेंट होती है, और ये बहुत ज़्यादा रिपीटेडली एमसीक्यूज में आया है, इसलिए आई एम जस्ट फोकसिंग ऑन दिस अ बिट. ठीक है, ये कॉन्स्टेंटली 2 वीक्स होगा, 14 डेज होगा. बाकी अगर किसी का साइकिल बड़ा है या छोटा है, दैट्स ड्यू टू द वेरिएशन इन फॉलिकुलर फेज. ठीक है, FSH, यू कैन लुक एट द लेवल ऑफ FSH एंड LH. ठीक है, यहाँ पर अच्छा, बॉडी में दो जगह पे पॉजिटिव फीडबैक साइकिल का पूछा है एमसीक्यूज में बार बार. एक तो बर्थ, एट द टाइम ऑफ बर्थ देयर इज अ पॉजिटिव फीडबैक साइकिल. सेकेंडरी ये दिस पॉइंट इन ओव्यूलेशन इज पॉजिटिव फीडबैक साइकिल, जहाँ पे ईस्ट्रोजन की इंक्रीजिंग लेवल ऑफ ईस्ट्रोजन विल गो एंड पॉजिटिवली स्टिमुलेट LH, और वो इंक्रीज होगा एंड दिस पॉइंट विल कॉज ओव्यूलेशन. ठीक है, फिर ये दोनों डाउन आ रहे हैं. ठीक है, इसको कौन सा पॉइंट कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है, देखें. FSH एंड LH, प्राइमोरियल फॉलिकल से डेवलपिंग फॉलिकल, ये ग्राफियन फॉलिकल पूरा एंट्रम बन गया यहाँ पे. फिर इसके बाद ये कॉर्पस ल्यूटियम, आखिर में जो स्कार रह जाता है दैट्स कॉर्पस एल्बिकैंस. कॉर्पस ल्यूटियम वी ऑल नो विल प्रोड्यूस प्रोजेस्टेरॉन, जो कि इनिशियल हमारे पास 2 वीक्स तक, अगर हमारे पास जब तक इम्प्लांटेशन नहीं होती है, इम्प्लांटेशन क्यों होती है और पहले क्यों नहीं होती, उस पर भी हम आएंगे फिर बाद में. ठीक है, तो उस टाइम पे वी गेट प्रोजेस्टेरॉन फॉर मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी. ठीक है, ये ईस्ट्रोजन लेवल है, ये डेवलपिंग फॉलिकल से आ रहा है, ग्रेन्युलोसा सेल से हमारे पास डेवलप होता है. ठीक है, एंड देन इट्स गोइंग राइज. ये देखिए राइज कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है LH लेवल को. ठीक है, फिर प्रोजेस्टेरॉन लेवल कीपिंग ऑन इंक्रीजिंग. ठीक है, एंड दीज आर द चेंजेस बिकॉज ऑफ द ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन. ईस्ट्रोजन हमारे पास कौन सा फेज है, प्रोलिफरेटिव फेज है, प्रोलिफरेशन कंप्लीट हो जाती है. ठीक है, हमारे पास वेसल्स आ गई हैं. ठीक है, ईस्ट्रोजन के इफेक्ट में, सी के ईस्ट्रोजन के इफेक्ट में वी हैव द वेसल्स, but when do they start coiling and become tortuous and go into the secretory phase? Under the effect of progesterone. ठीक है, तो secretory phase is progesterone. ये MCQ भी बहुत commonly आया है कि लेडी presents at 18th day या 20th day of her period, which phase is she in? तो secretory phase है. यूजुअली बस इन लोगों ने साइकिल की लेंथ नहीं दी होती, अगर दी हुई है तो यू कैन कैलकुलेट जो लास्ट 2 वीक्स हैं वो कॉन्स्टेंट्स हैं, अगर उसमें से आ रहा है कोई डेट तो दैट इज सिक्रेटरी फेज. अगर नहीं आ रहा है, ठीक है, तो और डायरेक्ट 18 दिया है तो बस यू हैव टू कंसिडर कि 28th डे का साइकिल है, तो 14 डेज में से अगर कोई डे है तो दैट इज इन सिक्रेटरी फेज. ओके, नाउ आई सेड कि मैं डेफिनेशंस दिखा दूंगी इन फॉलिकल्स की. तो here we have the definitions. Primary follicle, a follicle that has 2 layers of follicular cells. 2 layers is to say 2 से ज़्यादा भी हो सकती हैं. It is called a primary follicle. These cells continue to hypertrophy and proliferate to form many layers surrounding oocyte. Eventually, these cells become granulosa cells, which will secrete the hormones. And sorry, my bad, I've written progesterone over here. ठीक है, it's estrogen. Okay, secondary follicles larger than primary follicle. ठीक है, it increase द फॉलिकुलर सेल्स का नंबर भी इंक्रीज हो जाता है, और इसमें स्मॉल एक्यूमुलेशंस ऑफ फ्लूइड जो मैंने वीडियो के स्टार्ट में दिखाए हैं वो स्पेसेस आना शुरू हो जाते हैं इन इंट्रासेलुलर स्पेसेस. तो इस पॉइंट पे इसको सेकेंडरी फॉलिकल कहते हैं बिकॉज दे विल कोएलेस टू फॉर्म एंट्रन. What is a Graafian follicle? Follicular stage after first meiotic division. ठीक है, फर्स्ट meiotic division complete हो गई है, but before ovulation. ठीक है, ovulation से पहले first meiotic division complete हो जाती है. It contains a haploid oocyte, one copy of each chromosome but two sister chromatids, 23X after meiosis. ठीक है, after meiosis 2 के बाद जो है फिर ये 1 and 1C पर जाएगा. When released from Graafian follicle, secondary oocyte contains, अब कंफ्यूज नहीं करना सेकेंडरी फॉलिकल को और सेकेंडरी oocyte को. सेकेंडरी oocyte वो है जिसने अपनी फर्स्ट meiotic डिवीजन कंप्लीट कर लिया. सेकेंडरी फॉलिकल इज अ फॉलिकुलर स्टेज, सेल अंदर है, ठीक है, फॉलिकल उसके इर्द गिर्द है. ठीक है, ये एक डिवीजन कंप्लीट करेगा मियोसिस 1 तो सेकेंडरी oocyte बनेगा. ये जब पूरा एंट्रम बनाएगा तो ये ग्राफियन बनेगा. ओके, फॉलिकल एंड oocyte को कंफ्यूज नहीं करना है. When released from Graafian follicle, secondary oocyte will contain oocyte, zona pellucida and corona radiata. ठीक है, और zona pellucida क्या है, हमारे पास ग्लाइकोप्रोटीन कोट है. ठीक है, गोवर एच भी मैं पहले बता चुकी हूँ कि क्या है. ठीक है, and zona pellucida की disintegration will play a role in implantation. ठीक है, which I'll continue in the next video. Okay.